Good morning, students. In today's class of refrigeration and air conditioning, we will discuss about the vapor absorption system. In the previous class, we have discussed about the vapor compression system, in which we are producing the desired refrigerating effect or cooling effect in the evaporator by compressing the refrigerant vapors. But in vapor absorption system, we are not using any compressor. Instead, we are using an absorber, pump and generator to produce the required refrigerating effect. Now we will discuss in detail how this system is working. Now, first of all, we will discuss that the refrigerating systems for small units were made up to 20-ton capacity. But nowadays, for commercial and industrial air conditioning purposes, we are able to produce the refrigerating systems from 100-ton to 700-ton capacities and even more. So the major difference between vapor absorption and vapor compression system is that in case of a vapor absorption system, we are making use of the heat energy to operate the system. Now, the heat required in the generator may be the solar heat, or you can say solar energy, or waste heat from the industrial processes, or exhaust gases from the automobiles or power plants and steel plants. So I have told you that in vapor absorption system we are not using any compressor. Instead, we are using an absorber, a generator and a pump, while the other components such as condenser, evaporator and expansion valve remains as such. And in the vapor absorption system, the only moving parts are the controls and the valves in smaller systems, whereas in large absorption systems we are using fans and circulating pumps. So moving parts are very less in case of vapor absorption system, so it is quiet or peaceful in system in operation. So first we will discuss about the principle of vapor absorption system, that on what principle this system works. So absorption system makes use the ability of a substance which is called absorbent, which has the capability to absorb relatively large volume of the vapors, refrigerants in a liquid form, and this absorption has the ability to absorb large volume of vapors, refrigerants when cold. जब ये हमारा एब्जॉर्बेंट कोल्ड कंडीशन में होता है, मीन्स उसका जब टेम्परेचर कम होता है, तो उसमें रेफ्रिजरेंट वेपर्स बहुत ज़्यादा मात्रा में घुलनशील डिज़ोल्व हो जाते हैं, और जब ये हॉट कंडीशन में इसको हम टेम्परेचर सप्लाई करते हैं, इसका टेम्परेचर राइज करते हैं, तो ये गिव अप करता है, वेपर्स रेफ्रिजरेंट वेपर्स को अलग कर देता है. तो इस प्रॉपर्टी के बेस पे वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम हमारा काम करता है. तो अब हम पार्ट्स की बात करेंगे कि कैसे कैसे पार्ट्स हमारे इसमें काम करते हैं. तो फिगर आपके सामने है, तो पार्ट्स को समझ लेते हैं. देखिए, जो वेपर कंप्रेशन सिस्टम में जो सिमिलर पार्ट्स थे, हमारा कंडेंसर,
then receiver, expansion valve and evaporator. तो सिमिलर पार्ट्स हमारे इवेपोरेटर, एक्सपेंशन वाल्व, रिसीवर एंड कंडेंसर, ये सेम पार्ट्स हैं और वैसे ही बिहेव करते हैं जैसे वेपर कंप्रेशन सिस्टम में बिहेव कर रहे थे। हमने सिर्फ कंप्रेसर को रिप्लेस किया है, किससे? एब्जॉर्बर से, पंप और जनरेटर, और बीच में एक प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व भी यूज़ किया है। तो एब्जॉर्बर में बेसिकली एक सोल्यूशन रहता है एक्वा एमोनिया। एमोनिया हमारा यहाँ पर रेफ्रिजरेंट है और वाटर हमारा एब्जॉर्बेंट है। तो अमोनिया को पानी में मिक्स करके जो सोल्यूशन बनता है दैट इज़ कॉल्ड एक्वा एमोनिया, और ये एब्जॉर्बर में रहता है। इसका टेम्परेचर कम रहता है तो इसमें हमारे अमोनिया वेपर्स ज़्यादा मात्रा में घुल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। ये इसकी प्रॉपर्टी है एब्जॉर्बेंट की कि जब ये इसका टेम्परेचर कम होगा, कोल्ड कंडीशन में होगा, तो इसमें अमोनिया वेपर्स बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में मिक्स हो जाएंगे। और इस स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन को इस पंप की हेल्प से हम जनरेटर में सप्लाई करते हैं, स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन, ठीक है ना। और जनरेटर में हमने हीट इनपुट दिया है। हीट इनपुट मैंने बताया बर्नर की हेल्प से, सोलर एनर्जी या वेस्ट फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हम यूज़ करके जनरेटर में हीट सप्लाई करते हैं। तो इस हीट सप्लाई करने से क्या होता है, हमारे जो अमोनिया वेपर्स पानी के साथ मिक्स हैं वो अलग हो जाते हैं और हमारे सिर्फ अमोनिया वेपर्स एट हाई प्रेशर्स हम आगे सप्लाई कर पाते हैं कंडेंसर में, ठीक है ना। और जो हमारा वीक सोल्यूशन बच गया कि जिसमें कम मात्रा में अमोनिया वेपर्स हैं और हॉट है, इसको हम वापस प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व से इसका प्रेशर कम करके दोबारा एब्जॉर्बर में सप्लाई कर देते हैं। तो ये सिस्टम यहाँ पर चलता रहता है, ठीक है ना। और जब ये दूसरी साइड पे जब हाई अमोनिया वेपर्स हमारे कंडेंसर में पहुँचते हैं तो वहाँ पर अपनी हीट डिसिपेट करते हैं। यहाँ पर जैसे हमने दिखाया है कि कंडेंसर के चारों तरफ कूलिंग वाटर हमने सर्कुलेट कर रखा है कि जो रेफ्रिजरेंट की हीट है वो वाटर को एक्सचेंज कर देते हैं, ठीक है ना। और हमारा रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर कम हो जाता है और फेज चेंज हो जाती है और लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। वेपर से हमारे लिक्विड अमोनिया बन गया, लिक्विड अमोनिया। फिर रिसीवर टैंक में एक हमारा इसका एक मिनिमम लेवल मेंटेन करने के लिए, कांस्टेंट सप्लाई के लिए हमने एक रिसीवर टैंक यूज़ किया हुआ है। उसके बाद एक्सपेंशन वाल्व उसी तरह से काम करेगा, थ्रॉटलिंग एक्सपेंशन कर रहे हैं और इसका प्रेशर और टेम्परेचर कम कर दिया है। और यही रेफ्रिजरेंट वेपर्स जब इवेपोरेटर में एंटर करते हैं तो इवेपोरेटर में हमारा रिक्वायर्ड रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट जो हमने प्रोड्यूस करना है, यानी कि जो उसमें चीज़ें रखी हुई हैं उनका टेम्परेचर हमने एटमॉस्फेयर से बिलो मेंटेन करना है, जो डिज़ायर टेम्परेचर मेंटेन करना है, तो वो अब रेफ्रिजरेंट हीट एब्जॉर्ब कर लेगा और उस रेफ्रिजरेटेड स्पेस में रखी हुई चीज़ें हमारी कूल हो जाएंगी, ठीक है ना, बच जाएंगी ख़राब होने से, ऐसे कह लीजिए। तो इवेपोरेटर में ये हमारा लो प्रेशर अमोनिया वेपर्स आउटलेट की फॉर्म में बाहर निकलते हैं और फिर एब्जॉर्बर में जाकर मिक्स हो जाते हैं। एब्जॉर्बर में फिर ये वाटर एक्वा अमोनिया में लो प्रेशर अमोनिया वेपर्स मिक्स होंगे। इसको हमारा हीट पंप उठाकर जनरेटर में सप्लाई करेगा जिससे इसका प्रेशर भी राइज हो जाएगा और वहाँ पर हम हीट को यूज़ करके अमोनिया वेपर्स को पानी से अलग कर देंगे, ठीक है, एब्जॉर्बेंट से अलग कर देंगे। और हाई प्रेशर अमोनिया वेपर्स आर सप्लाइड फर्दर टू द कंडेंसर and the weak solution of aqua ammonia is transferred back through the pressure reducing valve to the absorber. So in this way this whole system works. Now अगर हम बात करें, अब हम बात कर रहे थे कि हमारा जो वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम है
ये टू फ्लूइड सिस्टम है। टू फ्लूइड का मतलब इसमें हमने अमोनिया, जिसका कोड हमने बोला था R717 R717, और वाटर एज ए एब्जॉर्बेंट, तो दो फ्लूइड यूज़ करे हैं, तो इसको टू फ्लूइड रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। और हमारा रेफ्रिजरेंट हम अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड ये भी यूज़ कर सकते हैं वाटर के साथ, बट कॉमनली हम अमोनिया यूज़ करते हैं R717। एक और सिस्टम है दैट इज़ ए थ्री फ्लूइड सिस्टम, जिसमें एब्जॉर्बेंट प्लस रेफ्रिजरेंट के अलावा एक हमारा थर्ड फ्लूइड भी यूज़ करते हैं, जो कि हाइड्रोजन गैस यूज़ करते हैं। ठीक है ना। जब हम थर्ड फ्लूइड सिस्टम यूज़ करेंगे तो हमारे एक्सपेंशन वाल और पंप भी इस सिस्टम में से हट जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। वो हम आगे डोमेस्टिक इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम है, दैट इज़ टू फ्लूइड सिस्टम, जिसमें हमारा अमोनिया एज ए रेफ्रिजरेंट एंड वाटर एज ए एब्जॉर्बेंट यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो ये हमारा वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम यूज़ किया जाता है डोमेस्टिक एज वेल एज कमर्शियल इंस्टॉलेशंस में। ठीक है, अब इसके एडवांस वर्जन भी आ गए हैं मार्केट में। तो अब COP की बात करें तो इसमें देखिए हमारे पास ओनली मैकेनिकल एनर्जी जो है पंप को ऑपरेट करने में यूज़ हो रही है। हीट इनपुट जो दे रहे हैं पंप को ऑपरेट करने में यूज़ हो रही है, और हीट एनर्जी जो हम जनरेटर में सप्लाई कर रहे हैं, ये हमारी इनपुट है। तो हमारी COP का फार्मूला होता है, COP कैसे कैलकुलेट करते हैं, COP इज इक्वल टू रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बटे वर्क डन। ठीक है ना। तो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट तो हमारा इवेपोरेटर में प्रोड्यूस होता है, तो COP इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द रेफ्रिजरेंट इन द इवेपोरेटर, या नेट रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस इन द इवेपोरेटर डिवाइडेड बाय इनपुट क्या था हमारा, वर्क डन बाय द पंप प्लस हीट सप्लाइड इन द जनरेटर। सो इस तरीके से हम COP कैलकुलेट करते हैं वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम की। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें याद रखने के लिए कि हमारी मैकेनिकल एनर्जी सिर्फ पंप में ही सप्लाई हो रही है। ठीक है ना। और अमोनिया जो है उसका कोड R717 है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एब्जॉर्बर में जब अमोनिया वेपर्स एब्जॉर्ब होते हैं एब्जॉर्बर के द्वारा, वाटर के द्वारा, तो यहाँ पर प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, इस एब्जॉर्बर में प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। ठीक है ना। विच इन टर्न्स, अब जब यहाँ पर प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा तो ये इवेपोरेटर से और ज़्यादा वेपर्स सक करने की कोशिश करेगा। इट विल ड्रा मोर अमोनिया वेपर्स फ्रॉम द इवेपोरेटर एंड रेजिज द टेम्परेचर देयर, और इसकी वजह से यहाँ पर टेम्परेचर राइज होगा। तो इस तरह से सर्कुलेशन चलता रहता है रेफ्रिजरेंट का। ठीक है ना। और कूलिंग अरेंजमेंट जो यूज़ करते हैं, वाटर कूलिंग टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ वाटर, यहाँ पर भी हमने देखिए कूलिंग वाटर कंडेंसर में यूज़ किया था और एब्जॉर्बर में। तो कूलिंग वाटर को सर्कुलेट इसलिए करते हैं कि ये इसका टेम्परेचर कम बना रहे, कोल्ड कंडीशन में रहे। कि जब यहाँ पर प्रेशर रिड्यूस होगा तो मोर अमोनिया वेपर्स होंगे, वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने की कोशिश करेगा, बट ये जो वाटर सर्कुलेट कर रहे हैं एब्जॉर्बर में, इसके टेम्परेचर को कम करके बना के रखेगा, मेंटेन कम करेगा, कम टेम्परेचर मेंटेन करेगा यहाँ पर, जिसकी वजह से ज़्यादा अमोनिया वेपर्स स्मॉल अमाउंट ऑफ एब्जॉर्बर में मिक्स हो जाए। ये इसकी प्रॉपर्टी थी एब्जॉर्बर की कि जब कोल्ड कंडीशन में है तो इसमें अमोनिया वेपर्स ज़्यादा मिक्स होते हैं। ठीक है ना। और पंप जो है, पंप हमारा प्रेशर जो मेंटेन करता है अप टू 10 बार प्रेशर अप्रॉक्सीमेटली मेंटेन करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम। थैंक यू, मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।